Hi, this is Dr. Vivek Shrivastava and welcome to PIMS Physiotherapy Clinic. Today we have a very prestigious physiotherapist, Dr. Avinav Sathe, former physiotherapist of senior hockey team India. Welcome, Dr. Avinav. Good evening. So, Dr. Avinav, how was your journey to this point? So it was a very pleasant journey, Right. and it did involve much of hard work, but I was happy, and I still believe that if someone decides some goals and if you are upgrading yourself from time to time, so anything is achievable. Very nice, very nice. So, Dr. Avinav, first of all, I would like to ask you about what is the role of physiotherapy in current sports scenario. As you can see right now, there are lot many athletes, lot many players who are praising physiotherapy like anything. So, I just wanted to know from your perspective, what is the perspective of physiotherapy? Indeed, sir. As of now, from the past, I would put a point like we can correlate it with Olympic sports. So right from 2012, you can see till the Paris Olympics in 2024, the scenario has totally changed. Previously, there used to be a contingent physiotherapist. I'm not saying that with the teams there wasn't a physio, but the amount of importance now what a sports science team gets, not only the physio, the psychologist, the nutritionist, even the masseurs, that has totally changed, and we can see the amount of medals which are coming right from Olympics to Para-Olympics as well. So currently, if we summarize this, the whole scenario has changed. The importance of the physio is as parallel as important to the coach. How the coach gives the player input to play, but make him ready to play, it's the physio who does it. Oh, So that's great to hear. एंड एक्चुअली मुझे यही फील होता है कि जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से फिजियो को प्रेज कर रहे हैं, the amount of our Indian physios are putting for their health and their performance, वो that is that is very nice. जी सर, आपने बिल्कुल सही बात कही, ये बिल्कुल है। और मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, मानवीय आधार हम जिसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है सर, प्लेयर्स जो हैं वो अपने फैमिली से दूर होते हैं, चाहे बहुत एलिट प्लेयर्स भी हों, बट कई बार ऐसा हो जाता है महीनों महीनों के लिए वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं। कोच से गेम के अलावा कुछ चीजें वो कई बार एक्सप्रेस कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं, और ये हमें तो पता है कि साइकोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी प्लेयर के खेल में। तो कई बार फिजियो एक वो ब्रिज का रोल प्ले करता है। जब फैमिली का एब्सेंस है, कोच से कुछ चीजें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो फिजियो से वो चीजें एक्सप्रेस, क्योंकि that means it's a peer relationship क्योंकि आप डे टू डे या हर दूसरे दिन आप कुछ रिकवरी के कारण या कोई इंजरी के लिए या कोई हम ही कुछ असेसमेंट वीकली असेसमेंट कर रहे हैं, तो प्लेयर खुल के अपनी बातें कई बार एक्सप्रेस करता है और वो ईज आउट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा along with physiotherapy आप उनकी जो physical health पे काम कर रहे हैं, along with that you are working on mental health also. Yes, sir. अच्छा, एक बहुत कई बार मेरे दिमाग में एक टर्म आया है, कई बार मैंने सुना है, mental practice. So what is this mental practice and physiotherapist उसमें किस तरीके से एथलीट्स को हेल्प करता है, प्लेयर को हेल्प करता है? इसमें मुझे पता है सर, आपके चैनल पे कई स्टूडेंट्स भी इस चीज को सुनेंगे। तो सर यहाँ पे आ जाता है हमारा बेसिक, जो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में योगा पढ़ते हैं, हम मेडिटेशन रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि क्या होता है सर, जिम का सेशन होता है, ग्राउंड का सेशन होता है, कई बार जिम सेशंस में विद द कोरिलेशन विद द एसएनसी जो डिसाइड करता है सब कुछ कि कौन से दिन क्या करना है, आजकल बहुत कंपलसरी लीव हो गया है। इवन एलिट मैंने इंडियन टीम में भी देखा कि एक रिकवरी सेशन या जिम में ही एक मेडिटेशन सेशन इधर मॉर्निंग में या आफ्टरनून में और रिलैक्सेशन सेशन के रूप में करता है। और इसमें क्या है सर, मेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हमने जैसे कि एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, मनु भाकर जी ने अभी 2 मेडल ओलंपिक्स में देश के लिए जीते। तो जितना फिजिकली डिमांडिंग वो स्पोर्ट्स है शूटिंग, वो मेंटली भी है। और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो हमारी जो पौराणिक किताबें हैं, गीता है, उसके साथ साथ वो रिलैक्सेशन का भी टेक्निक यूज करते थे और वो रिफ्लेक्ट है। तो यहाँ पे जो बात आपने पूछी सर, तो फिजियो भी सर, अब ये टीम टू टीम डिपेंड करता है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा और मेरे नोन में भी देखा है कि फिजियो ये सेशन ले रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं है सर, हमारे जो बेसिक अनुलोम विलोम आसन है, उसके साथ प्राणायाम है, फिर उसके बाद हमारे सुपाइन पोजीशन आसन, प्रोन पोजीशन आसन, ये सब किया जाता है। और उसमें जो हमारे मॉडर्न फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं, हम उन पे फोकस कर रहे हैं,
हमारे एंशियंट प्रैक्टिस है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, along with that we are focusing on spiritual things also. Yes, sir. So that's a combination of whole thing, holistic approach जो हम बात कर रहे हैं. इवन सर हमने हमारे प्रैक्टिस के दौरान अभी तक मैंने एलीट स्पोर्ट्स में ये भी देखा कि कई प्लेयर्स अभी आई कैन गिव विद द फैक्ट कि कई प्लेयर्स और कई टीम सर फॉरेन में जाके या इंडिया में ऐसे मेंटल कंडीशनिंग कैंप लगा है Okay. जिसमें कोई स्पोर्ट रिलेटेड या हॉकी है या फुटबॉल है तो वो नहीं खेलेंगे, इट वुड बी अ ट्रैक ऑफ few thousand feet Okay. जिसमें आपको करना है, उसमें फिर टीम बॉन्डिंग हो रही है, Nice. टीम वर्क हो रहा है, कोई एक जैसे अगर 11 लोग की टीम है तो उसको 2 में डिवाइड करके या 3 में डिवाइड करके उनको कुछ टास्क दी जा रही है, तो इससे उनकी बॉन्डिंग बन रही है, और जो कि फिर प्रेशर सिचुएशंस में अगर वैसी कोई सिचुएशन मैच के दौरान आई तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो टीम बॉन्डिंग, Right. तो कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट अब गेम पे पड़ रहा है जो कि हमें दिख रहा है परफॉर्मेंस के। वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो दैट मीन्स कि हम इन सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करके हम नॉट ओनली ऑन स्पोर्ट ट्रेनिंग, वी आर फोकसिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आल्सो. हम उनके इंडिविजुअल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, उनके मेंटल स्टेटस पे फोकस कर रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग, पीयर बॉन्डिंग पे हम फोकस कर रहे हैं. दैट इज वेरी गुड. तो अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता था, जैसे आपने भी बीच में रिकवरी कर लिए बोला, तो जो रिकवरी पीरियड है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? जो हमारे यंग फिजियोज आ रहे हैं, जो बडिंग फिजियोज आ रहे हैं, उन वो अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करें कि वो आगे चल करके रिकवरी में ज़्यादा ध्यान दें? एक और टर्म भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले हम रिकवरी बात करते हैं, एक प्री रिहैब टर्म आजकल प्रीहैब पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो ये दो चीज़ों को मैं जानना बिल्कुल सर, मैं इसको विस्तार में बनाना चाहूंगा अपने फिजियो साथियों के लिए. सो देखिए, रिकवरी में अभी इस समय मतलब करंट स्पोर्ट्स सिनेरियो में, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और ये सब साइंटिफिकली डेटा से बैक्ड है. मैं सिर्फ 3 एग्जांपल्स के साथ ये चीज बताना चाहूंगा सर, कि जैसे स्लीप है, तो आज के समय में हमारे पास सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, हमारे पास ऐसे एथलीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसमें हम हर दिन प्लेयर को एक शीट भेजते हैं. वो मैं एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता हूँ, एज अ स्पोर्ट्स साइंस स्पेशलिस्ट, या फिर एसएनसी के साथ मिलकर भी हम ये करते हैं, जिसमें हर दिन प्लेयर अपना वेकअप टाइम, हर दिन अपना स्लीप टाइम, कई बार वो इसको ऑल्टर भी कर सकता है, बट उसमें हम ऐसे डिवाइसेस देते हैं कि वो अपने आप वो डाटा आ जाता है. दैट मींस हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को साथ में इंटीग्रेट तो करते हैं. इसमें सर स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है रिकवरी के रूप में. फिर अब आपने जैसे पूछा कि फिजियो क्या रोल प्ले कर सकते हैं रिकवरी में, तो सर आजकल कहने को बहुत सिंपल बात है, आइस बाथ सेशंस, बट आइस बाथ कितनी लेनी है, कितने मिनट की लेनी है, हाइड्रोथेरेपी के अलावा उसका रिकवरी में कैसा रोल है, ये सब फिजियो डिसाइड करता है. कि अगर बैक टू बैक मैचेस हैं तो आइस कैसे हेल्प करने वाली है, तो सेकंड चीज वो हो गई सर. तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन. तो जरूर सर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट जो एक अलग विधा है, एक अलग स्पेशलिटी है, वो है, पर उनका सेशन मान लीजिए हफ्ते में 2 बार हुआ है, महीने में 1 बार हुआ है, बट उसको कुछ डॉक्यूमेंट करना हो या फिर प्लेयर से फीडबैक लेना हो, उसमें भी सर अगेन फिजियो बहुत रोल प्ले कर रहा है. और आज इस समय स्पोर्ट्स साइंस में ऐसी कई शीट्स अवेलेबल हैं, कई ऐसे इंटरनेशनली पब्लिश्ड हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें हम उनसे वो चीज एथलीट मॉनिटरिंग की, डेली वेलनेस सॉफ्टवेयर है, डेली वेलनेस शीट्स हैं. तो यहाँ पर अल्टीमेटली फिजियो एक कह सकते हैं फोकल पॉइंट बन जाता है सर, कि कोचिंग एस्पेक्ट तो कोच संभाल लेते हैं, बट स्पोर्ट्स साइंस टीम में जो फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो एक फिजियो प्ले करता है, और वो फिर हेल्प आउट करता है कि हाँ आपको साइकोलॉजिस्ट की या आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट की, हो सकता है कहीं ऑर्थोपेडिशियन की रेफर करते हैं, वो एक बहुत रोल प्ले कर रहा है. और इस तरीके से सर फिर परफॉर्मेंस भी दिख रहा है. एक और छोटा एग्जांपल इसी बीच में बताना चाहूंगी सर, जैसे लीग हो रही है, चाहे आईपीएल हो, चाहे हॉकी लीग हो, या किसी भी प्रकार की लीग हो, उसमें बैक टू बैक मैचेस हैं. इवन एलीट प्लेयर्स भी कई बार अपने थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं. तो अब बहुत अच्छी बात है इसके सर हम नेशनल सेटअप में भी इन रिकवरी मोड्स की चीजों को, जिसमें मैं जोड़ना चाहूंगा आजकल क्रायोथेरेपी हो गया, जो कि पहले से चला आ रहा है, प्रेशर फीडबैक थेरेपीज करते कुछ की, बायोफीडबैक इक्विपमेंट से, अब ये सब काफी यूज हो रहे हैं. और उसके लिए सर इसको समराइज करूं कि अब सर एसोसिएशंस भी उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस ले रहे हैं, और फंडिंग का भी अब धीरे धीरे इश्यूज नहीं, मैंने काफी स्पोर्ट्स में देखा है कि दे आर ऑलवेज वेलकम. पहले जो है जितना नाउ दे अंडरस्टैंड, मेन फोकस था दैट वाज ऑन क्रिकेट एंड मेन स्ट्रीम पे था. सो सर सेकंड पार्ट आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, प्रीहैबिलिटेशन. सर बिल्कुल आप अपनी बात पर बिल्कुल सही है सर. कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो इंजर हो,
बट उसको पता है कि इंजरी एक पार्ट है गेम का और किसी भी लेवल पे इंजरी होना लाजमी है, पर कैसे एक फिजियो रोल प्ले करता है, तो इसका मैं तो सर एक एग्जांपल जैसे कि फिर देन दे विल फोकस in designing such exercise during the gym which would be a part of prehab only, or some agility drills or some change of direction drills. Same happens in individual sports as well. कि आपको दिख रहा है कि सेट पैटर्न है, जैसे बैडमिंटन प्लेयर्स पकड़ ले या शूटर्स में भी देखा, कहने को लगेगा कि फिजिकली बहुत डिमांडिंग नहीं है, बट उसमें भी लॉन्ग स्टैंडिंग के कारण कुछ पर्टिकुलर इंजरीज या वेट वियर करने के कारण शोल्डर पे इंजरीज, क्रॉनिक कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बैक में होती है, तो प्रीहैब में बिल्कुल सर रोल प्ले करता है। और कोचिंग एस्पेक्ट तो अपनी जगह रहा कि टीम के साथ मिलकर जो चीजें प्लान हुई, देन प्लेयर भी सर ही विल लाइक, मैं एग्जांपल जो मैं कहा था कि बताऊंगा कि ही कैन पुट अ टाइम ऑन एवरी मंडे लेटेस्ट से दैट ही विल बी असेसिंग द प्लेयर्स ऑन देयर एंकल कि उनका मोबिलिटी सही है कि नहीं, कुछ उनको कोई इंजरी, कई बार प्लेयर छुपाते भी, ऐसा नहीं है हर बार, बट कई बार ऐसा लगता है कि निगल है, उनको लगता है सर मेरे को तो लगा था हो जाएगा, बट हो सकता है वो एक सेशन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो प्रीहैब में सर थोड़ा सा अगेन रिकवरी का पार्ट आएगा कि क्रायोथेरेपी हो गई, मसाज टेक्निक्स हो गई, अगेन हमारे कुछ बेसिक एक्सरसाइज हो गई, तो ये हेल्प करती है और इंजरी का रेट मिनिमाइज करती है, जो कि अगेन एविडेंस बेस्ड है, हजारों रिसर्चर्स ने इस चीज पे कि देखा गया है कि इंजरीज कम है, तो बिल्कुल प्रीहैब इज लाइक द इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द प्लेयर्स। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, एक मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, चूंकि हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हैज बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमारा जो सिनेरियो रहा है अभी तक, जिस तरीके की फिजियोथेरेपी हम प्रोवाइड करते रहे हैं, तो अब हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ हम मॉडिफिकेशंस हमने अडॉप्ट किए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी वैसे भी हम ओवरऑल भी मेडिकल फील्ड देखें, एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग और फिजियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है। हाँ। और इसमें अगर कोई चीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है तो मैं कहूंगा स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है इंडिया में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही थी वो अपनी जगह है, बट नाउ मेनी प्लेयर्स आर गोइंग फॉरेन, दे आर प्लेइंग मेनी मैचेस देयर, दे आर हैविंग अ गुड टाइम being spent regarding their injury also, कि कुछ वो सर्जरीज कराने गए होंगे, और वहां की कई उन्होंने चीजें देखी है। मैं बता रहा हूँ 10-12 साल पुराना पार्ट, जब मैं सर आई वाज अ वेरी नोवाइस फिजियो या मैं जस्ट पास आउट हुआ था, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, मैं डायरेक्टली चीजों के साथ ही बताता हूँ आपको कि जैसे काइनेसियोलॉजिकल टेपिंग काफी समय से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में भी यूज हो रही थी, बट अगेन जैसे प्रीहैब में हमने देखा TRX करके एक आजकल एक जिम का सेटअप जैसा रहता है, हाँ। तो वो वेट को बहुत डिमांड नहीं करता, बट वो इतना हार्ड रहता है और उसमें प्लेयर्स को मजा भी आता है, तो वो ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हमारे छोटी छोटी इक्विपमेंट है बोजू बॉल जैसे, तो वो प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को बेटर करने के लिए, जो कि अगेन एंकल इंजरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर प्रीहैब में वो हो चुका है। फिर मैं अपने जो यंग फिजियो हैं या जो बनने वाले हैं उनको कहूंगा कि जैसे आज भी लाइक लाइफ नेवर स्टॉप्स, वैसा वाला कि एजुकेशन नेवर स्टॉप, आप अपने को अपग्रेड करते रहे फील्ड में। इस समय ISTN हो गया, उसके अलावा ड्राई नीडलिंग कंसेप्ट्स हो गए, कई मोबिलाइजेशन कंसेप्ट्स हो गए, जो कि टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए, आज से 10 साल पहले नहीं थे। हाँ। और वो न्यू है, उसमें जरूर बेसिक्स वही है, बट इट इज नेवर हार्मफुल टू गेट न्यू नॉलेज, एंड इट्स जस्ट लाइक सर, मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में बोलूंगा कि ये एक आपका किट का एक पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। आपको हैमस्ट्रिंग आपको मैनुअली ट्रीट करनी है, बट यू विल हैव एन MET कंसेप्ट विद यू, यू विल हैव अ नीडलिंग कंसेप्ट विद यू, यू विल हैव एन ISTM कंसेप्ट विद यू। नाउ इट डिपेंड्स आप कौन सा टूल यूज आपके स्किल के ऊपर, आप कितनी जल्दी आप रिजल्ट देना चाहते हैं। और ये तो हुआ सर फिजियो एस्पेक्ट जो आपने पूछा, बट आपने जैसे ही सवाल पूछा था तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट याद आया था, खिलाड़ियों का पॉइंट। तो कई बार अब ऐसा सिनेरियो आ चुका है सर, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, प्लेयर्स सर्च करते हैं, चीजें दिखती हैं, तो प्लेयर्स कई बार सामने से पूछते हैं कि सर आपको ये चीज पता है, तो देखिए ये है बहुत लेमैन चीज, बहुत सिंपल, बट इट इज नॉट रॉन्ग ऑन द प्लेयर्स एस्पेक्ट कि वो पूछ रहा है कि सर आपको ये चीज का भी, या मैम आपको इस चीज का कंसेप्ट पता है क्या। तो उस पॉइंट से भी देखा जाए तो हमारे जो यंग फिजियोज हैं सर, जरूर उनको फील्ड में जो भी अपग्रेडेशन आ रहा है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, जरूर करना चाहिए सर। वो कोई नुकसान का नहीं रहता, फायदा ही देता है आपको। और एक आप इसमें कोई बुराई नहीं कह रहे कि आप भीड़ में फिर आप अलग दिखते हैं जब आपको हर चीज उस चीज की पता हो, तो
मेरा यही कहना है सर इस पॉइंट। ओके, वेरी नाइस अभिनव। अच्छा, एक चीज आपने अभी जो लास्ट में मुझे आपकी बातों में क्लिक किया, एज ए इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, वी लैग इन क्वालिटी रिसर्च। सो आप किस तरीके से, वी आर प्लानिंग फॉर अ रिसर्च सेशन आल्सो, रिसर्च में हम कुछ सेशंस हम प्लान कर रहे हैं। बाय द टाइम आई वुड लाइक टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड कि हम बच्चों को जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो किस तरीके से क्वालिटी रिसर्च को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस पे 2 लाइन आप। सर आपने बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया और मैं इसको बहुत सिंपली ही बताऊंगा। मैं एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। कई बार क्लिनिशियंस का ये कहना रहता है कि जरूर मैंने अपने बैचलर्स के टाइम मास्टर्स के टाइम पढ़ाई तो करी थी, मुझे रिसर्च का पता था, स्केल्स का पता था, बट मैं कर नहीं पाया। तो मैं कहूँगा वो गलत कह रहे हैं ये चीज़। बहुत इजीली जो कि एविडेंस बेस्ड अवेलेबल कई ऐसी स्केल्स हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे नी पेन के लिए आप पूज स्केल करके है, वो शॉर्ट फॉर्म में के डबल ओ एस पूज स्केल है, आप उसको ले लीजिए। आपके पास आर्थराइटिक पेशेंट या ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट आ रहे हैं, आप उनका डाटा लीजिए। आपको डे 1 को लगेगा ये तो एक ही पेशेंट आया, बट आपको अगर महीने में 4 या 5 भी आ गए तो आपकी वो केस सीरीज बन जाएगी। जरूरी नहीं है वो कोई बहुत कंपैरेटिव स्टडी बने, पर जब वो एक केस सीरीज आप अपनी मेहनत से डाटा लेके उसको पब्लिश करेंगे, एंड व्हेन यू विल सी योर नेम इन दैट एंड इट माइट गेट साइटेड इन अ ईयर और सो दैट happiness which you will get is the first part. Nice. And second part is there is nothing like no. तो कहीं ना कहीं से आजकल सर इतना सिंपल आ गया। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ इस पार्ट को एंड करूंगा। कई ऐसी गूगल पे, iOS पे सर ऐसी एप्स अवेलेबल हैं जिनको फिजियोज यूज करके अपनी मनचाही स्केल, अगर शोल्डर का है तो स्पाइडी नाम की मान लीजिए एक स्केल है, नी तो मैंने बताया ही है, एंकल है तो एंकल रिलेटेड स्केल्स हैं, बैक है तो बैक रिलेटेड स्केल्स है। बस उनको सर्च करना है और अपने ही पेशेंट का नाम और उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। वो उनके मोबाइल पे चली जाएगी एंड दे विल जस्ट फिल इट लाइक अ गूगल शीट एंड देन द फिजियो विल गेट रिस्पांस। ये तो बहुत जो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर्स हैं उसमें भी सर वी कैन मतलब हम जो डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसमें भी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन करते हैं बिना बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म। एग्जैक्टली। और जो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर्स हैं अलग-अलग भाषाओं में अवेलेबल हैं, तो वो भी कोई टैबू नहीं है कि पेशेंट को परेशानी। तो ये है, देयर इज ऑप्शन टू वर्क। ओके, thank you Dr. Abhinav for sharing your wonderful knowledge and experience. And thank you sir, I feel like a circle of life. You have been my teacher in my bachelor's and still you are just a guide to us. और आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके चैनल पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप इससे हमारे जो यंग फिजियोज हैं उनको जरूर कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you everyone for watching this video and we will come back soon with another exciting topic. Stay tuned and subscribe to PIMS Physiotherapy Clinic. Thank you.